اگر آپ جنت میں داخل ہو جائیں تو سب سے پہلا کام جو آپ کرنا چاہیں گے وہ کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں ایک بار تو اس بارے میں سوچتا ہی ہے نا؟ ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. اپنے پیاروں سے ملاقات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی والدہ، اپنے والد اور بہن بھائی، ان کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں گلے لگانا اور ان سے یہ کہنا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آتی تھی، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتا تھا. کیا آپ ان لمحات کو محسوس کر سکتے ہیں؟ پھر انہیں بتانا کہ آپ پر کیا حالات گزرے، ان سے باتیں کرنا اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ مل کر رہنا. کیا یہ زبردست بات نہیں ہے؟ کچھ بھائیوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیں گے، تو ہمیں ایسے جوابات بھی ملتے ہیں، مثلاً اڑنا چاہیں گے، یا کسی تاریخی جنگ میں جانا چاہیں گے، یا کسی تاریخی شخصیت سے ملاقات کرنا، ان لمحات کو گزارنے کا تجربہ کرنا، احراموں کو تعمیر کرتے ہوئے دیکھنا، پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کا مشاہدہ کرنا، حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کا مشاہدہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے منظر کو دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ دیکھنا، جنگ بدر کا مشاہدہ کرنا، اور ان جیسے تمام تاریخی واقعات کا چشمدید گواہ بننا. اگر ہم جنت میں داخل ہو گئے تو وہاں ہمارے دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. وہ تمام چیزیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں، ہمارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم بات کریں گے جنت کے بارے میں. میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حیرت انگیز احادیث ہیں. ہم کچھ ایسے سوالات کے جوابات بھی دیں گے جن کے بارے میں لوگوں کو اکثر تجسس رہتا ہے. میں آپ سے بالکل بنیادی سوال پوچھتا ہوں، کیا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں، ہے نا؟ جنت کا منظر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات جب آپ اس کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کو یہ کچھ افسانوی باتیں لگتی ہیں. مطلب جنت میں اڑنا، آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور وہ فوراً وہاں جاتی ہے. ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہونا. بھائی، اگر جنت بہت افسانوی نہ لگتی اور ایک انتہائی عام سی چیز لگتی تو اتنی پرکشش نہ ہوتی. ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل و دماغ میں کبھی ان کا خیال بھی نہیں گزرا. جو لوگ جنت کو ناقابل یقین سمجھتے ہیں، انہیں اپنی تخلیق پر نظر ڈالنی چاہیے. کیا یہ بڑی بات نہیں کہ اس نے تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا؟ ہمارا رب ہمیں ایک ایسی جگہ کی دعوت دے رہا ہے جہاں ناممکن ممکن ہو جائے گا. ہم ایک ایسی جگہ کی طرف جا رہے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی افسوس. وہاں کسی قسم کی بری گفتگو ہوگی، نہ دھوکہ، نہ غیبت. آپ کو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہوگا. میں نے ایسا کیا تو لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. آپ کو ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی. جس چیز کی آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آن موجود ہوگی. ایسا کوئی احساس محرومی نہیں ہوگا کہ جب جی چاہے تب اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ سب اکٹھے ہی ہوں گے. وہ واقعی امن سے بھرپور جگہ ہوگی. وہ ہمارا اصل گھر ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم امتحان پاس کر لیں تو وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. جنت کی ایک اور تشریح علامہ بدیع الزماں سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں، زمین پر 1000 سال کی خوشگوار زندگی جنت کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہے. جنت کے 1000 سال اللہ کے دیدار کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں ہے. اس زندگی کے بارے میں مت سوچیں جو آپ اس وقت گزار رہے ہیں. ایک ایسی زندگی کا تصور کریں شروع سے لے کر آخر تک خوشیوں سے بھرپور ہو. جس زندگی میں ہزارہ سالوں میں ایک بھی پریشانی نہ آئے، تو یہ کس کے برابر نہیں؟ جنت کے 1 گھنٹے کے برابر. ہم ایسی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو نعمتوں سے بھرپور ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جنت کی 1000 سال کی زندگی دیدار باری تعالیٰ کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہے. علامہ نورسی اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث نقل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ کے دیدار کی لذت جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. جہاں تک کہ اللہ کا دیدار کرنے والے جنت کی سب نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور اللہ کے دیدار کے بعد ان لوگوں کے چہروں کی خوبصورتی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے، ان کے محلات میں موجود ان کے گھر والے انہیں بمشکل ہی پہچان پائیں گے، وہ بھی غور کرنے کے بعد. تو ہم اللہ عز و جل کے حسن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو یوں سمجھیں کہ رات کا وقت ہو اور پورا چاند نکلا ہوا ہو اور اس کی روشنی کا عکس سمندر پر پڑ رہا ہو. اس وقت چاند کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سورج سے آ رہی ہے نا؟ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ہم زمین پر زندگی سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، اب بہت خوش محسوس کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اب اپنے گھر والوں سے گلے ملتے ہیں. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کے سب سایہ ہیں اللہ کی خوبصورتی کے سائے کا، جو بہت سے پردوں میں پوشیدہ ہے. اب یہاں میرے ہاتھوں میں ایک آئینہ ہے جو سورج کی روشنی منعکس کر رہا ہے. آئینہ میں سورج سے مجھے محبت ہے. بالکل اسی طرح ہم ان پردوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہیں. پھر ایک دن وہ آئینہ جس سے آپ کو محبت ہے ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر زندگی میں آپ کو کچھ مشکلات آتی ہیں، آپ سر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت روشنی آئینے کی اپنی نہیں تھی، بلکہ وہ تو سورج سے آ رہی تھی. بالکل اسی طرح جب ہم درمیان میں حجابات ہٹاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ تمام خوبصورتی جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے. یقیناً جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں
कि क्या हम जन्नत में हमेशा रहकर कभी बोर नहीं हो जाएंगे। सूरह अल कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वो उसमें हमेशा रहेंगे, वो थकेंगे नहीं और ना ही वो उसे कभी छोड़ना चाहेंगे। अल्लाह जल्ला शानाहू जिसने बोरियत का तस्वुर पैदा किया है, वो लामहला इस बात को यकीनी बना सकता है कि आप बोर ना हो। मिसाल के तौर पर आपने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक इस दुनिया में कितनी किस्म के खानों का मजा चखा है। हम दुनिया में जायकों की एक बहुत महदूद सी मिकदार का मजा चखते हैं और उनमें से ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया में सैकड़ों किस्म के खाने ऐसे हैं जो सिर्फ जैतून के तेल से बनाए जाते हैं। टमाटर का एक जायका है, अंडे का अलग जायका है, मिर्च का अपना जायका है, और जब सबको आपस में मिला दिया जाए तो आपको एक और अलग जायका मिलता है। आइए गौर करें, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो ऐसे है गोया समंदर के मुकाबले में एक गिलास पानी, और हम उससे खुश हैं तो पूरे समंदर का आलम क्या होगा। इस वक्त तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% ही चखा होगा। जब हम जन्नत के जायकों के बारे में सोचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम लाखों में से एक ही चख पाते हैं। अब ये सोचें कि अल्लाह जल्ला शानाहू के इल्म और कुदरत में क्या कुछ हो सकता है जो उसने इस दुनिया में नहीं भेजा होगा, जो जन्नत ही के लिए पैदा करेगा। फिर सिर्फ खानों में से हमने लाखों में से एक ही चीज चखी है। सूरह अल ज़ुखरुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वहाँ हर वो चीज होगी जिसकी कोई दिल ख्वाहिश करेगा और जिससे आंखें लज्जत हासिल करेंगी, और आप हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। जन्नत में अपने पसंदीदा फल का तस्वुर करें, आप उसे खाते हैं और जायके से लुत्फअंदोज होते हैं, और अगली बार जब आप उसे खाएंगे तो वो पहले से ज्यादा लजीज होगा। लिहाजा वहाँ यकसानियत या बोरियत जैसी कोई चीज नहीं, और हमेशा के लिए खुशियों में इजाफा ही होता चला जाएगा। जन्नत के 8 दर्जे हैं, हर एक का स्टेटस मुख्तलिफ है, लेकिन क्या हम अपने प्यारों से जुदा हो जाएंगे अगर हमारे दर्जात मुख्तलिफ हुए। 8वें दर्जे का कोई शख्स पहले दर्जे के किसी शख्स से कैसे मिलेगा, ये भी बड़े तजस्सुस की बात है। अल्लामा बदियुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर रसाइल नूर में इसे बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। जब वो जन्नत को बयान करते हैं तो हदीस नबवी से आगाज करते हैं। हमारे नबी करीम फरमाते हैं, इंसान जन्नत में अपने दोस्तों के साथ होगा। मिसाल के तौर पर कि मेरी जायकों से लुत्फअंदोज होने की सलाहियत बहुत आला है, लेकिन आपकी ये सलाहियत कम है। मेरी बिनाई अच्छी है और मैं बहुत दूर देख सकता हूँ। आपकी बिनाई भी अच्छी है, लेकिन आपकी बिनाई मेरे जितनी अच्छी नहीं है। हम एक जगह पर एक ही मेज पर बैठे हैं जहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है और हम एक ही खाना खा रहे हैं। कौन ज्यादा लुत्फअंदोज होगा? मैं हूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी देखने की सलाहियत और जायके की पहचान ज्यादा है। इसी तरह जन्नत में अगर हम एक ही किस्म का खाना खाते हैं, अपने दोस्त के साथ एक ही मेज पर बैठते हैं, हमें जो लुत्फ मिलेगा वो मुख्तलिफ होगा और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे दरमियान कोई फर्क है। सब मुतमईन होंगे अपने जाती तजुर्बे के एतबार से। जन्नत के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? जन्नत में आपको एक नई चीज का तजुर्बा होगा, एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद होना। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर करें, इस वक्त आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए मदीने की सड़कों पर घूम रहे हैं और उसी वक्त आप अपने पसंदीदा खाने से भी लुत्फअंदोज हो रहे हैं और उसी वक्त आप मरीख पर जा रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करें जहां तमाम खुशियां और उन तमाम चीजों का तजुर्बा साथ साथ होगा। आप बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हैं और आप उन सब खुशियों को एक साथ महसूस कर रहे हो। अल्लाहु अकबर, खुशियां हर लम्हे बढ़ती रहेंगी। जब मैं इसे बयान करता हूं तो मुमकिन है कुछ दोस्त सवाल करें कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रदर, जब आप अपनी माँ के पेट में थे, अगर उस वक्त कोई शख्स आपके सामने बाहर की दुनिया का मंजर बयान करता तो क्या आपके लिए माँ के पेट में उस सब को समझना मुमकिन था? वो आपको बताते कि दुनिया में कौसे कज़ा नामी एक चीज होती है, लेकिन आप सिर्फ तारीकी और अंधेरे को जानते थे, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते थे। बिल्कुल, आप ये सब समझ ना पाते, लिहाजा ये बहुत आम सी बात है कि आपको ये सब एकदम समझ नहीं आएगा। हम एक मुख्तलिफ जहान के बारे में बात कर रहे हैं। एक मशहूर कहावत है जो कहती है कि ये पैमाना इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तराजू का तस्वुर करें जिसकी सलाहियत 100 किलोग्राम वजन तक की है। अगर आप उस पर 2 टन वजन डाल दें तो क्या होगा? फिर वो बर्दाश्त करेगा? नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ऐसा कुछ तैयार रखा है, ऐसी खूबसूरती जो हमारे जहन बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये दिलचस्प बात नहीं होगी कि आप किसी ऐसी खूबसूरती में दाखिल हों जिसका पहले से तस्वुर भी नहीं किया जा सकता? इस हदीस कुदसी को याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने उनके बारे में सुना नहीं और किसी इंसान के दिलो दिमाग में कभी उनका ख्याल भी नहीं गुजरा होगा। सूरह अल क़ाफ में अल्लाह का इरशाद है, वहाँ जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और हमारे पास उनके लिए और भी बहुत कुछ है। देखते हैं वहाँ और क्या कुछ देखेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में दाखिल होने से पहले हमें खास दरिया में गुस्ल करेंगे। उस दरिया का पानी इंसान के जिस्म से हर किस्म की नजासत को दूर कर देगा। उसके बाद जन्नत के 8 दरवाजे हैं और आपको आपके अमाल के मुताबिक किसी एक दरवाजे से बुलाया जाएगा। मसलन अगर आप नमाजों की खूब हिफाजत करते थे तो आपको नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अगर आप सदका कसरत से करते थे तो आपको सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अगर आप रोजों का ज्यादा एहतमाम करते थे तो आपको बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम दरवाजों के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? उन पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या आपने कभी हौज़ कौसर के बारे में सुना है? वो क्या है? ये एक पानी का हौज है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मुलाकात करेंगे और आप उन्हें एक मशरूब पेश करेंगे। कौसर का पानी इस कदर लजीज है कि एक बार जब कोई शख्स उसे पीना शुरू कर दे तो फिर वो उससे अपना सर न उठाए अगर अल्लाह की रहमत ना हो। ये अल्लाह की रहमत ही है जो आपको रोकती है। ये हदीस बहुत ही जबरदस्त है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले अपने सहाबा किराम से गुफ्तगू करते हुए आपका तज़किरा किया है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, काश मैं अपने भाइयों को हौज़ पर आते देखता और उनका इस्तकबाल शरबत के प्यालों से करता। काश मैं उन्हें जन्नत में दाखिल होने से पहले अपने कौसर से सिराब करता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? नबी करीम ने जवाब दिया, तुम मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझ पर ईमान लाएंगे बावजूद ये कि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। बेशक मैंने अपने रब से दुआ की है कि वो मेरी आंखें ठंडी करे तुम्हारी मुलाकात से और उन लोगों की मुलाकात से जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए। तो हमारे प्यारे नबी के दिल में आपसे मुलाकात की ख्वाहिश है। वो आपसे मुलाकात चाहते हैं, आपको हौज़ कौसर का पानी पिलाना चाहते हैं जन्नत में दाखिल होने से पहले। इन रिवायात को पढ़ते हुए एक इंसान क्या महसूस करता है? वो कुछ शर्मिंदगी महसूस करता है और अपने माजी के बारे में सोचता है जो गलतियों से भरा हुआ है। वो उन कामों के बारे में सोचता है जो उसने इस हकीर दुनिया की खातिर किए महज थोड़ी सी खुशी के लिए। एक तरफ देखा जाए तो कामिल जन्नत है जिसकी खूबसूरती हमारे तसव्वुर से बाहर है, लेकिन जहाँ शायद एक फोन के लिए, शायद थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं गोया आप इस्लाम पर यकीन ही नहीं रखते और आपको दिल में इस पर कोई पछतावा भी महसूस नहीं होता। अगर हम थोड़ी सी तनख्वाह की खातिर घंटों काम कर सकते हैं लेकिन अपने रब को 1 घंटा भी नहीं दे सकते, अपनी नमाजों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, तो हमें रुक जाने की जरूरत है। हमें रुक कर सोचने की जरूरत है। जन्नत दुनिया की तरह कोई आर्जी मामूली सी तनख्वाह की ऑफर नहीं देती थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए, ऐसे जैसे किसी बच्चे को टॉफी दे दी जाए। शैतान आपको ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है गोया आपका कोई दीन ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुनने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? तौबा, ठीक है, तौबा कर लें। मेरे नबी के दिल में मेरे लिए ऐसी मोहब्बत है जब कयामत के दिन हर शख्स एक दूसरे से दूर भाग रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा, एक ही जात होगी, हमारे नबी करीम की हस्ती होगी जो कहेंगे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, और वो बेपनाह मोहब्बत और शफकत के साथ दौड़ के तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जबकि इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन की जानिब से जानवरों की ओजड़ी तक आप पर डाली गई। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस मकसद को छोड़ता हूँ। आपने जिद्दोजहद जारी रखी, आप कोशिश करते रहे ताकि ये सच्चाई आज आप तक पहुंच सके। आपने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, शदीद तकलीफें बर्दाश्त की, मुतअद्दिद बार आपको कत्ल करने की कोशिश की गई। इस मकसद की खातिर आपने पूरे जजीरा नुमा अरब का मुकाबला किया ताकि ये आप तक पहुंच सके, लेकिन आप इस तरह बेफिक्री से जी रहे हैं गोया ये सब हकीकत ही नहीं है। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। अगर आप बेऐब हैं बराए करम कोई गलती ना करें, लेकिन हम सब में गलतियां हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं। जिस तरह हमारी ये गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इसी तरह आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और आप कब्र में होंगे। एक बीज जमीन में जाता है और एक मुकम्मल नई जिंदगी शुरू करता है ना? दर हकीकत बीज की मौत एक नई जिंदगी का आगाज है। जब आप जमीन के नीचे चले जाते हैं आपकी भी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। क्या आप हकीकी सवाल जानना चाहते हैं? आप वहां किस जानिब होंगे? जरा तसव्वुर करें अपने बारे में। आपने हराम को छोड़ दिया, आपने अपनी जिंदगी हलाल तरीके से गुजारी और फिर आप अपनी जिंदगी के 40, 50, 60 साल गुजार कर फौत हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आप उस जगह जाएंगे जिसका हमने आपसे जिक्र किया अभी। जरा गौर करें, क्या आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना नहीं चाहेंगे? क्या आप मुतजस्सिस नहीं हैं? क्या आप ऐसी जगह जहां आप हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद के साथ हों अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अपने दादा दादी, अपने वालिद वालिदा और अपने प्यारों के साथ हों और आपको एक आवाज सुनाई दे, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। आप मुड़कर देखते हैं अब कोई तकलीफ बाकी नहीं रही, सब खत्म हो चुकी। ना कोई दर्द होगा, ना कोई गम होगा, ना कोई तनाव होगा, ना कोई बेचैनी होगी। क्या जन्नत में ऐसे लोग होंगे जो आपकी पीठ पर छुरा घूम सकते हो? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके तमाम खौफ पीछे रह गए। आपके सामने एक जन्नत है जहां हम हमेशा रहेंगे। हमारे प्यारे नबी हौज़ कौसर के सामने आपका इस्तकबाल करते हैं। तो बराए करम आइए हम अपनी जिंदगियों के बारे में फैसले करें। उठिए और अपनी आंखें खोलिए। आइए हलाल के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारें, तकवा के दायरे में, सुन्नत के दायरे में। और जब हमारी जिंदगी खत्म होगी
तो आइए हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, उनसे गले मिलें और कहें, या रसूल अल्लाह, मैंने इस दिन तक पहुंचने के लिए बहुत जिद्दोजहद की है, मैं बहुत बार गिरा हूँ, मैं उठ गया हूँ, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैंने हराम चीजों से इनकार कर दिया था, आपके रास्ते पर चलने की वजह से उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हमेशा इस दिन पर नजर रखी जिस दिन आप मुझे गले लगाएंगे, और मुझे हमेशा इस दिन का इंतजार रहा जब आप मुझे अपना भाई कहेंगे या अपनी बहन कहेंगे। सुबहान अल्लाह, अगर हम ये कर सकें तो भाइयों, हम वहां हमेशा रहेंगे, कभी वहां से नहीं निकलेंगे। उन हराम चीजों के बारे में सोचो जिनको आप अपनी जिंदगी से निकालने पर आमादा नहीं है। क्या आपको उनसे ऐसी खुशी मिल रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लगने से बढ़कर हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठीक है, फिर अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते रहे।